बेईमान हो जाती है, हद से ज़्यादा तो लालची हो जाती है, करप्शन वगैरह बहुत आम हो जाता है, तो फिर उनके ऊपर जालिम हुक्मरान बिठा देता है। ये हमारा मानना है और ये अक्सर बेशतर लोग मुंह से अल्फाज ये निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले किसी हुकूमत को अपनी इस्लाह करनी है। सबसे पहले किसी हुकूमत को, पॉलिटिशियंस को कुछ कहने से पहले हम देखें कि क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो जॉली ग्रैंड टर्मिनल देहरादून एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ACIL जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल देहरादून से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देहरादून we proudly present Jolly Grant Airport's new terminal in Dehradun. The city of Dehradun is the capital of Uttarakhand. It is nestled in the Doon Valley at the Himalayan foothills and is one of the most loved hill stations of the country. The number of passengers travelling to Uttarakhand is likely to double in the next few years, and the government wanted to be prepared for that. The Airport Authority of India had a vision to build a spacious terminal which would echo the perfect blend of rich culture and modernity that Dehradun stands for. We make this building 10 times bigger than the existing building so that more numbers flights and more passengers can be accommodated with world-class facilities. This is where we stepped in to prepare a terminal that met this vision. The roof of this building, actually the ceiling, which is not very visible when you see from the front or something, but it actually curves in 3 different dimensions and 3 different planes at the same time. And each member vertical standing is actually for different height. And we really enjoyed working this part of the project with the airport, designing it with the airport authority and the consultants, and giving it a shape and giving it a smooth finish, which is making it a very, very unique thing for us. I don't think we've done this kind of a project ever. This building has been completed with all safety protocols, and we have achieved 4.3 million man-safe hours, which show the work ethics of the company against the safety protocols. To create this landmark and masterpiece in a Devbhoomi, approximately 7,000 workers has given their best to achieve the success of the building. This building has got state-of-the-art advanced fire detection, firefighting, CCTV, public addressing and alarm system, inline conveyor baggage system. All other modern facilities are included in this building. We have set up various structures. Our feature columns, German metal false seal, roofing work and facade come together to evoke a modern aesthetic. We have used 5,850 metric ton of structural steel. In addition to that, 2,850 metric ton of reinforcement steel has been used here. We have featured majestic artwork inspired by the local culture and heritage. This artwork runs 83 meters long, and we have been listed in the World Book of Records, London, for creating the largest wall art mural. We are now ready with a terminal that can hold 1,800 people during peak hours. As Dehradun prepares to welcome more and more people,
we have laid a foundation to ensure that everyone's journey is comfortable and filled with joy. ज़बरदस्त जी जनाब, बहुत ही आला और बढ़िया, खूबसूरत, मतलब शानदार किस्म का एयरपोर्ट, ऐसा एयरपोर्ट देहरादून। अच्छा, हमने एयरपोर्ट्स और भी बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, जिवार एयरपोर्ट देखा था हमने, ठीक है, वो अपनी जगह मतलब हर एयरपोर्ट जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम डिसअपॉइंट होते हैं, हमें ऐसा होता है यार नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, इससे बेटर तो वो वाला था, इससे बेटर तो वो वाला था। अच्छा, वाकई सीरियसली इसकी क्या वजह है? हर एयरपोर्ट, असल में एयरपोर्ट जो होता है उसका अपना एक डिज़ाइन होता है, किसी को कॉपी नहीं किया जाता, किसी को कॉपी नहीं किया तो जाता। हर एयरपोर्ट की अपनी एक पहचान, अपना एक लुक, अपना एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि किसी और को देख के तो जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल वही ओल्ड टाइप का बना लिया हो या ओल्ड टाइप की चीज़ें, बहुत यूनिक एडवांसमेंट। मतलब आपने रूफिंग देखी थी? बिल्कुल, क्या वर्क था, आपने आर्ट वर्क देखा? और आर्ट इतनी बड़ी जो आर्ट वर्क की जो दीवार थी इतनी बड़ी थी कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी इस लेवल की इतनी बड़ी कोई भी मतलब है क्या, और जिसमें कल्चर दिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि जब दुनिया से लोग आते हैं आपके कंट्री में तो सबसे पहले वो उतरते हैं एयरपोर्ट पर। जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहाँ का माहौल, वहाँ का मतलब वो सब कुछ रिप्रेजेंट कर देता है एयरपोर्ट ही, मतलब पूरा मुल्क जो होता है ना उसकी मतलब बता देता है कि क्या है और किस तरह किस लेवल का मुल्क है। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। मैं कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए ना मतलब, और अभी अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कंप्लीट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और 7,000 लोगों ने, तो मुझे लग रहा है 7,000 लोगों ने इंसाफ किया है, मतलब किसी एक ने भी ऐसा नहीं है कि अपना काम नहीं और किया होगा। सबसे पहले तो ईमानदारी से उस शख्स को सलूट या उस शख्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कि जो मतलब इसके इंचार्ज थे, जिनकी मेहनत थी। देखिए टीम 7,000 मजदूर थे या काम करने वाले, काम करवाने वाला कमाल करवाने, असल चीज़ मजदूरों की अपनी अहमियत है, उनकी मेहनत है, लेकिन उनको मैनेज करके प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को टाइम पर कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है 5 लोग अगर आप रख लो किसी जगह पर, पागल हो जाते हैं। आप उनसे काम लेके दिखा दो, उनको मैनेज करके दिखा दो, तो अपनी स्किल्स होती हैं बिल्कुल, और हर किसी में नहीं होती। और अभी जब कंप्लीट हुआ तो मेरे ख्याल में शायद इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री बनी जो हमने देखी। अच्छा, सीरियसली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं बस थोड़ा सा मतलब कुछ आधा बिछा लूं, हाय सुकून से सो जाओ। वाकई बहुत सुकून, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई आपको बड़ा रिलैक्स होगा, बड़ा कंफर्ट फील होगा इस एयरपोर्ट में। मुझे ऐसी फीलिंग बहुत आ रही थी। और बता रहे थे, बनाने वाले खुद बता रहे थे कि एक मास्टरपीस, वाकई मास्टरपीस, इसमें कोई शक नहीं है कि मास्टरपीस नहीं है। और ये देहरादून जो सिटी है उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स, कई लोग आ सकते हैं, कई लोग जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में आसानी होगी। पता है जो नॉर्मल सिटीज़ होते हैं या बहुत इंटरनेशनल सिटी नहीं होते तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर इस तरह के सिटीज़ पे भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम जिन शहरों को, मैं अपना बिल्कुल सच बताऊँ कि हम पाकिस्तानी जो है जिन शहरों को, जिनके नाम हम सुने तो हम सोचते होंगे कि शायद ये बड़े छोटे सिटी होंगे, मैं कहता हूँ यार इंडिया के तो छोटा सिटी भी इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा। मैंने देहरादून का नाम मैं आपको बताऊँगी, मैंने कब सुना था। मैं शायद 3 या 4 क्लास में होंगी, तो एक मूवी चल रही थी, उसमें एक सॉन्ग आ रहा था, सैयाजी देहरादून के बातें होती हैं फ़ोन पे। अच्छा। हाँ, तो मुझे तब से वो देहरादून नाम इतना यूनिक था ना, वो बच्चों के माइंड में तो आ जाती है, कुछ चीज़ें बहुत कैच कर लेते हैं वो मैं जब अच्छा उस टाइम पे आप लव स्टोरी वाले सॉन्ग सुनती थी? लव सॉन्ग नहीं, बाकायदा मूवी चल रही थी पहले, इंडियन, आपको पता है इंडियन चैनल्स चला करते थे, अब बहुत ज़्यादा बैन हो गया। तो मैंने जब से वो माइंड में था मेरे, अब जब मैं वीडियो पे रिएक्ट कर रही होती हूँ, एक दफ़ा हमने देहरादून सिटी पे भी दिया है रिएक्ट, तो मुझे तब रिकॉल हो गया था कि ये मैंने पहले भी सुना है, और आज मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ गया कि मैंने कब सुना था। अब याद आया, अब याद आया जाकर। चलो इसका मतलब है कि माइंड काम करता है अभी भी। एज आपकी है, मेरा काम करता है बराबर। मेरा भी काम करता है बराबर। मान लिया, चलिए मान लिया। बाकी ये है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला, और यकीन करें पता है बहुत पीछे चले जाते हैं 6 महीने पहले जब हमने चैनल शुरू नहीं किया था, तो मैं ये समझता था कि कराची, मुंबई बराबर के, मतलब
बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच। यहाँ से यहाँ ये मैं बिल्कुल आपको अच्छा, कराची और मुंबई बराबर बराबर है, एक जैसे हैं। अच्छा, एक जितना भी समझता था मैं कि एक जितना एक जैसे, ठीक है, एक जैसी तरक्की, एक जैसे हालात, दोनों समंदर के किनारे। अच्छा भाई, अच्छा दूसरी चीज़, इसके अलावा जो सिटीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ भी हैं लेकिन नॉर्मल सिटीज़ भी हैं, तो इस तरह के इंडिया की किसी सिटी का नाम सुनने से ऐसा लगता था होगा कोई हैदराबाद की तरह, पाकिस्तान का हैदराबाद होगा कोई। अच्छा, सबसे बड़ी आपको जो एक मैं ये कहूँगी गलतफहमी थी, वो ये थी कि गरीब मुल्क है। बिल्कुल 100 लाख करोड़ का जो मुल्क एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है, तो क्या वो गरीब होगा? एक प्रोजेक्ट और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट है, लेकिन वो एक हमने गति शक्ति के नाम से एक प्रोजेक्ट देखा, तो मैं ये सोचूं, तब से मैं सोच रही हूँ क्या लेवल होगा उसमें, क्या लेवल होगा, उसको गरीब समझना या सोचना। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि उस इंसान की सोच गरीब है जो उसको गरीब। एक चीज़ हमने और नोट की थी कि जब हमें पता चला चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या रिएक्शन के थ्रू, इसी तरह और भी हमारे पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों का पता चल रहा है। आपने रिएक्शन वीडियोस देखी थी? रिएक्शन वीडियोस में बाकायदा रिएक्शन वीडियोस वो वाली, सॉरी इंटरव्यू वाली वीडियो देखी है मैंने उनको, तो बाकायदा पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इंडिया का, तो अब वो हालात मेरे ख्याल में कम हो गए हैं कि लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब लोगों को इस चीज़ का आइडिया होता जा रहा है कि राइट डेफिनेशन जो है ना इंडिया की, एक राइट में कहूँगी एक राइट इमेज जो है ना, वो यहाँ पाकिस्तान में किसी को नहीं पता थी, और अब धीरे धीरे पता चल रहा है, बाकायदा लोग अवेयर हो रहे हैं कि इंडिया वाकई क्या चीज़ है। लोगों को आइडिया ये हुआ कि वाकई इंडिया में तरक्की हुई है, उन्होंने सही वे में तरक्की की है। अच्छा, हम दोनों एक साथ समझो, इंडिया बना था, पाकिस्तान बना था, आज़ादी हुई थी अंग्रेज़ों से, तो एक साथ एक दिन का फ़र्क। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो गाड़ी है ना, पाकिस्तान की गाड़ी, वो अभी तक चल ही नहीं पा रही, या तो वो टेढ़े मेढ़े रास्तों में है, ठीक है। अच्छा, इंडिया की गाड़ी को रोड स्मूथ मिल चुका है और वो अपनी बेहतरीन स्पीड के साथ चल रही है। हम रोड ढूंढा भी किसने? वो तो उसके पीछे तो बहुत मेहनत है, बहुत प्लानिंग है, बहुत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस बात पे अभी जो सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम खड्डों में फंस गए हैं। तो हमें भी निकलना चाहिए, फंस चुके हैं, रोड ढूंढना चाहिए, हम ट्रैक पे आना चाहिए, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, एक होता है ना कि यार हमें अभी तक हमें मुल्क को चलाने वाला ही कोई नहीं मिला। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं बिल्कुल सच बताऊँगा कि कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये हमारे इस्लाम में, ये हदीस में है कि मफ़हूम है एक, मैं बिल्कुल ए टू जेड अल्फाज तो नहीं कहूँगा, कि जैसे लोग होते हैं अल्लाह पाक, ये हमारा ईमान भी है इस बात पे, अल्लाह पाक उन पे उस तरह के हुक्मरान, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये सुना था जब आवाम हद से ज़्यादा बेईमान हो जाती है, हद से ज़्यादा तो लालची हो जाती है, करप्शन वगैरह बहुत आम हो जाता है, तो फिर उनके ऊपर जालिम हुक्मरान बिठा देता है। ये हमारा मानना है, और ये अक्सर बेशतर लोग मुंह से अल्फाज ये निकालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले किसी हुकूमत को अपनी इस्लाह करनी है। सबसे पहले किसी हुकूमत को, पॉलिटिशियंस को कुछ कहने से पहले हम देखें कि हम क्या हैं, हम कितने ईमानदार हैं। हमारा देखिए, हर शख्स अपनी फील्ड में कोई ना कुछ कर रहा है। हर कोई क्या कहता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं आपको बताऊँ ना इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। हर इंसान ये सोच लेना कि मैं अकेला अपना फर्ज पूरा करूं। अच्छा, मैं इसका हल बताता हूँ ना कि एक शख्स टेलर है, वो अपना काम ओके करे बस। एक परचून वाला है, एक दूध वाला है, एक दही वाला है, एक रोटी वाला है। रोटी कितने की रोटी बनानी चाहिए, कितने की बेचनी चाहिए, दूध में पानी मिलाना चाहिए, किसी चीज़ में क्या मिलावट करनी चाहिए। ऑफिस में है, जॉब पे है, बॉस आता है 12 बजे, मेरी टाइमिंग है 9 बजे की, मुझे 9 बजे, अब बॉस आता है 12 बजे, तो मैं क्या करूँगा? बैठा रहूँगा। नहीं, बॉस आता है 12 बजे, तो मैं 12 बजे तक बैठा रहूँगा। नहीं, मैं आऊँगा ही लेट, अगर बॉस की नज़र मुझ पे और अगर मैं जल्दी आ भी गया तो बस जहाँ जिसको जितनी गुंजाइश मिलती है, मैं कहता हूँ एक छोटा सा कोई चाय के होटल का बहरा ही क्यों ना हो, बाहर वाला ही क्यों ना हो, वेटर ही क्यों ना हो, जहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पर लोगों को जितनी गुंजाइश मौका मिलता है, वो अपने छोटी सी करप्शन ज़रूर करता है। अगर हम अपने गिरेबानों में झांके, अपने आप को ओके कर लें, तो मैं कहता हूँ सब ओके हो जाएगा। लेकिन बहुत खूबसूरत देहरादून एयरपोर्ट कहाँ से कहाँ निकल गए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।